वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। दिस इज ASP.NET MVC ट्यूटोरियल एंड आप देख रहे हैं पार्ट 4 कस्टम वैलिडेशन इन MVC। सो कस्टम वैलिडेशन क्यों चाहिए? What is the need of custom validation? How to implement custom validation? Set default message in custom validation and set error message in custom validation and show property name in error messages। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कस्टम वैलिडेशन की ओर। So in every application you have your own logic, so you may have your own requirements for validating a particular field, and if that requirement is not fulfilled by existing validation attribute, then you have to create your own validation attribute. Creating a custom validation is very easy in MVC। तो जो भी अभी वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स है बाय डिफॉल्ट एमवीसी में, अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल नहीं होते हैं तो हमें अपना कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहिए। और कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास। वैलिडेशन एट्रीब्यूट इज अवेलेबल इन system.componentModel.data annotations namespace, and then we have to override is valid method। so ये सब चीज की जरूरत पड़ती है कस्टम वैलिडेशन क्रिएशन के लिए। ओके, सो लेट्स चलते हैं फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो एंड हाउ टू डू इट। लेट्स, दिस इज माय application named custom validation application, and I have this custom controller created। okay, now I will add one view page for this index method। so let's add a view and create empty without model, okay, with reference script libraries. If not, then please empty and click on this reference script libraries, leave this layout and partially। okay, and अभी हमको जो मॉडल क्लास यूज करना है वो तो नहीं चलेगा, तो फिलहाल हम लोग empty विदाउट मॉडल क्रिएट कर देते हैं और कोई पार्शियल व्यू की जरूरत नहीं है, राइट। so create this page and we'll add one form at the rate using html.begin form, and in this we will add the post method। so post method also will be same index, and the name of the controller custom controller, so please add name custom controller। so custom is my controller name, okay, and add the form method dot post form method dot post। ओके, तो जब भी हम सेव करेंगे ये वैलिडेशन क्रिएट होगा। अभी हमें एक तो वैलिडेशन समरी की जरूरत है, सो @html डॉट वैलिडेशन समरी डॉट वैलिडेशन समरी। ओके, तो ये हमारा हो गया। और अब हम लोग क्रिएट करेंगे नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म। सो @html dot editor4 x such that x dot name, we have created one class and inside of that we will add this property, okay, and place break tag, so line break will be given, and @html dot editor4 x such that x dot message, okay, and break tag for line break, okay, and let's add button to submit the form। so input type equal to submit and value equal to click me or save, no problem, whatever you think you can। okay, so
मेरा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, वैल्यू इक्वल टू ऑन क्लिक मी एंड दिस वन। ओके, चलिए चलते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं मॉडल क्लास के अंदर और इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉई डॉट सी एस। ओके, एंड इस क्लास के अंदर हम लोग नेम स्पेस दे देते हैं डेटा एनोटेशंस का यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ओके, एंड वहां पे जो दो प्रॉपर्टी ऐड की थी फॉर्म में, नेम, सो पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट and just add another one message. Okay, get set. Okay, and we will add here the require attribute for it, for name property. So name required attribute required. Okay, let's हमें अभी ऐसा कस्टम वैलिडेशन क्रिएट करना है कि जिससे अगर टेक्स्ट बॉक्स मैसेज नाम के प्रॉपर्टी के टेक्स्ट बॉक्स में अगर वही नाम फिलअप नहीं करते, सपोज देवेंद्र नाम अगर फिलअप नहीं होता है तो वैलिडेशन एरर देगा कि भाई प्लीज फिलअप वैलिडेशन, प्लीज फिलअप देवेंद्र नेम। ओके, सो लेट्स ऐड नेमस्पेस मॉडल and application name is custom validation application dot models dot मॉडल्स के अंदर हमारा ये क्लास है एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय। ओके, सो ये एरर अभी निकल जाएगा। नाउ सेव इट। ओके, चलिए चलते हैं कस्टम कंट्रोलर की ओर और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है बाकी का। इसमें ये एरर क्यों आ रही है? कैन नॉट बी इंटरफेयर फ्रॉम यूसेज, ट्राई स्पेसिफाइंग द टाइप आर्गुमेंट एक्सप्लिसिटली। Okay, let's go to this controller side and let's create post method to save the data. Okay, so ये हम write http post and paste this method here and use that model class. For that, using name of the application custom validation application dot models. Okay, and now I will use that model here, so employee emp. Okay, now let's add model state dot is valid property. So if model state dot is valid, अगर मेरा स्टेट मॉडल स्टेट सही है तो रिटर्न व्यू, अदरवाइज रिटर्न इंडेक्स व्यू, right? So here I have added, and before creating another message or after refresh page, you must clear the model state. So model state dot clear. Okay, ये हो गया। चलिए अभी हमें स्पेशल कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। सो राइट क्लिक ऑन दैट एंड ऐड क्लास। ओके, सो एंड क्लास का नाम रखते हैं देवेंद्र वैलिडेशन। ओके, और इस क्लास के अंदर हम लोग हमारा लॉजिक क्रिएट करेंगे। ओके, सो हियर प्लीज ऐड दैट using component model system dot component model dot data annotations. Okay,
एंड इस क्लास के अंदर हम लोग वैलिडेशन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे because this validate attribute class contains all the methods to validate data. Press F12 and check. You can see here error messages is valid, validation results all are inherited here in this abstract class of validation attribute, and this inherited by this attribute class. Okay, so let's हम लोग override करते हैं इस valid class को. So यहाँ पे protected override is valid. ओके, सो पूरा आ जाएगा. हम इसको दूर करते हैं और अपना लॉजिक यहाँ डिफाइन करेंगे. जो वैल्यू आएगी वो ये है और वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास का यूज करके उसको वैलिड किया जाएगा. अभी हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, अगर वैल्यू नल नहीं है तो क्या करेंगे. अगर वैल्यू नल नहीं है तो पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, एंड देन इफ मैसेज डॉट कंटेन्स, अगर मैसेज देवेंद्र नाम कंटेन नहीं करता है तो उसको एरर देना है. ओके, so let's add here the logic of this. Return validation result dot success. अगर कंटेन करता है तो डॉट सक्सेस देना है, अदरवाइज क्या करना है, हमें रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट जो भी है वो देना है. सो हम लोग यहाँ जो मैसेज देंगे वो प्लीज ऐड नेम देवेंद्र. ओके, सो ये मैसेज प्रोवाइड करेगा, वैलिडेशन मैसेज. चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को. से पहले हमें जो ये नई मेथड क्रिएट की है क्लास, उसको ऐड करना पड़ेगा एम्प्लॉय क्लास के अंदर एट्रीब्यूट की जगह पे. तो ये मैसेज यहाँ पे मैसेज फील्ड में उस क्लास का नाम ऐड कर देते हैं. क्या नाम है, देवेंद्र वैलिडेशन. सो एड्स देवेंद्र वैलिडेशन. सो लेट्स सेव इट एंड रन इट अगेन. ऐड नहीं करते हैं और सेव पे क्लिक मारते हैं तो वैलिडेशन समरी यहाँ पे आ जाती है. अगर मैं नेम ऐड कर देता हूँ और सेव पे क्लिक मारता हूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी में जो नेम देवेंद्र ऐड करना है उसके लिए एरर मैसेज आ गया जो हमने कस्टम वैलिडेशन प्रोवाइड किया है. अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ देवेंद्र, देन ये मॉडल क्लियर हो जाएगा, यानी कि सबमिट हो जाएगा फॉर्म. ओके, मॉडल स्टेट क्लियर हो गया. ये क्लियर कैसे हुआ, ये क्लियर हुआ है इस यहाँ पे जो हमने कंट्रोलर में मॉडल स्टेट डॉट क्लियर लिखा है इसकी वजह से, राइट. सो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ मेरा वीडियो सेशन, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.